Hello everyone. Considering that there is almost or slightly more than a week left for CAT 2024, I thought that I will bring this video for all those of you who are planning to take it or who are going to take it in slot 1. Now slot 1 as you know is going to happen from 8:30 am to 10:30 am, तो बहुत सुबह सुबह ये टेस्ट होने वाला है. And those of you who are taking it in slots 2 and 3, आपके लिए एक अलग वीडियो है. So do make sure that you check out that video to understand how your slot is going to function. तो स्लॉट 1 में जो लोग देने वाले हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रीव्यू इज व्हाट आई हैव डिजाइंड हियर. तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए बिफोर यू गो फॉर द टेस्ट एंड व्हाट ऑल थिंग्स शुड यू डू ड्यूरिंग द टेस्ट. तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक है. आई एम गोइंग टू शेयर सम एक्सपीरियंसेस फ्रॉम माई एंड एज वेल दैट आई हैव गेन्ड टेकिंग कैट फॉर व्हाट मोर देन 15 ईयर्स नाउ. सो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड इन केस देर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, do let me know in the comment section and I will try to help you with your query as well. So let's get going with the first part. तो before the test हमें क्या करना चाहिए? Now the first thing that you have to do is you have to start taking the mocks in the same slot. Now if you have followed any of my other videos on this channel, आप लोगों को पता होगा that I always strongly advocate that you take the mocks before or on the particular slot or in the particular slot rather जो तुमको मिला है in terms of the CAT. So 8:30 to 10:30 का अगर slot है तो सुबह जल्दी उठ जाओ. Make sure that you are sitting in front of your system at around 8 o'clock. 8:30 तक कुछ भी मत करना in front of your system and then start with your mock test. तो उससे ना काफ़ी ज़्यादा एक simulation मिलेगा considering that you are going to be taking the exam in that slot. Now those of you who are early risers, बहुत अच्छी बात है, you will basically be going through the routine that you would have done every time. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एट योर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल अवेयरनेस एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग एग्जाम्स इन दैट स्लॉट. जो लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, अब उठना पड़ेगा, राइट? कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में. दिस इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू डू, राइट? तो मेक श्योर दैट यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ इन अ वे to get up at a particular point in time and उसके बाद you have to be active at 8:30. कोई option नहीं है. You can crib and cry and feel bad and feel cheated and can feel a lot of things, but उससे cat crack नहीं होने वाला. Cat crack करना है, you have to be in your best shape when it comes to 8:30 in the morning. So make sure कि mocks एक ही slot में दे रहे हो so that you know what it needs to be done on the day of the test. अभी से लेकर टेस्ट तक I would not recommend more than 3 mock tests. एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक mocks मत देने की कोई ज़रूरत नहीं है. So maybe till Thursday you can take your last mock. Friday, Saturday थोड़ा free रख लेना. We will also be doing some activities on the channel, so make sure that you turn up for that instead of tiring your brain by taking a mock. The next thing बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल अरेंजमेंट्स पहले से करके रखना. सो दोस ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू गो टू अ डिफरेंट सिटी, राइट, जिनका स्लॉट या जिनका सेंटर जो है वो अपनी सिटी में नहीं आया है, मेक श्योर दैट यू आर ट्रैवलिंग वेल अहेड ऑफ टाइम. एक इवनिंग पहले जाके अगर बैठ जाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देर इज नो नीड टू स्टार्ट एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 3 o'clock इन द मॉर्निंग. वो सब करने की जरूरत नहीं है. रात रात ट्रैवल मत करना. मेक श्योर दैट यू आर अवेक एंड यू आर fully rested and are fresh on the morning of the test, right? So make sure कि आप एक दिन पहले arrangements कर लो. It's okay. See, you are spending maybe 3,000, 4,000, 5,000. It's okay, right? It's a one-time cost that you are incurring. अगर कॉन्फिडेंस है कैट क्रैक करने में, इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, अगर 10 से 15 से ज़्यादा मॉक्स अगर दिए हैं, इफ़ यू आर एमिंग टू गेट मोर देन अ 90-95 परसेंटाइल, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट योर ट्रैवल अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस बिफोर यू गो फॉर द टेस्ट. क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सरप्राइजेस हो सकते हैं. ट्रेन्स कैंसिल हो सकती हैं, ट्रैफिक जैम्स हो सकते हैं, कहीं पे रोड पे आपका या किसी और का कुछ कार में कुछ बिगाड़ हो गया, कुछ बिगड़ गई कार, लेट्स से कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो डोंट टेम्प्ट फेट. मेक श्योर दैट सुबह के स्लॉट में ना कोई भी यहाँ पे करेक्शन वाली कोई चीज़ नहीं होती. यू कांट वेक अप समवन एंड आस्क देम टू टेक यू टू द सेंटर. वो सब नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होगा. सो मेक श्योर दैट योर ट्रैवल अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस. एंड अगर थर्ड स्लॉट में जाके सुनोगे तो यू विल बेसिकली गेट टू नो माई एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट ईयर, जब मैं थर्ड स्लॉट में एग्जाम दे रहा था और मेरा सेंटर मेरे घर से कुछ 120-150 किलोमीटर्स दूर था. सो देन यू विल लिसन टू दी हॉरर स्टोरी जो मुझे फेस करनी पड़ी थी. सो मेक श्योर दैट यू आर ट्रैवलिंग वेल अहेड ऑफ टाइम. आफ्टरनून में पहुंच जाना, सैटरडे या इवनिंग में पहुंच जाना और रेस्ट कर लेना आराम से. मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग एट सम प्लेस दैट इज क्लोजर टू योर सेंटर सो दैट सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के नहीं भागना पड़े, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स. वो करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मेंटल पीस मिलेगा इन द मॉर्निंग, और कुछ नहीं, ठीक है? एंड दोस ऑफ यू आर फ्रॉम मुंबई, मेक श्योर दैट यू नो when द ट्रेन्स आर गोइंग टू नॉट फंक्शन,
राइट. सो संडे इस मॉर्निंग से लेके स्टार्ट होता है, जल्दी अर्ली मॉर्निंग नहीं होता जनरली, बट काफ़ी सारे ट्रेन्स कैंसल्ड होते हैं, काफ़ी सारे ट्रेन्स में मे बी दे विल हैव अ डिफरेंट शेड्यूल ऑन संडे. सो मेक श्योर दैट वो सब चीज़ों को ध्यान रख के ही अपना ट्रैवल अरेंजमेंट प्लान करो. देन ईट लाइट ब्रेकफास्ट एंड ईट हेल्दी द नाइट बिफोर. बहुत सारा एडवेंचर मत करना इन टर्म्स ऑफ फूड. आई रिमेंबर वन टेस्ट जहाँ पे आई हैड सम मिल्क एट नाइट एंड आई कुडंट डाइजेस्ट इट ड्यूरिंग द मॉर्निंग. सुबह सुबह मेरा स्लॉट था एंड ड्यूरिंग द टेस्ट आई स्टार्टेड फीलिंग एक्सट्रीमली अनईजी, राइट, एंड आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट. मतलब टेस्ट के टाइम पे यू विल जनरली नॉट वांट टू टेक और यू विल नॉट बी अलाउड अ वॉशरूम ब्रेक. तो ये सारी चीज़ें मत करना. यू विल एंड अप फीलिंग वेरी बैड एंड डिस्गस्टेड अबाउट योर सेल्फ. तो वो मत करना. ईट समथिंग लाइट, ईट समथिंग फ्रेश. कुछ डिसेंट सा चीज़ खाना. अननोन सोर्सेस से कुछ खाना मत खाना 2 or 3 days leading to the test. You don't want to be suffering from gastrointestinal diseases on the morning of the test. वो सब करने से ना you will additionally put random pressure on yourself. तो वो सब चीज़ें मत करना. Also don't skip breakfast. थोड़ा सा light breakfast खा लेना. You can have a sandwich, you can have some biscuits. What I generally do is I will carry a protein bar अगर मेरा morning slot आता है तो make sure that ये सारी चीज़ें कर लो. Stay hydrated, right? Don't skimp on water. नहीं तो क्या हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे you will start feeling hungry, you will start feeling thirsty. और अभी मतलब सीजन भी ऐसा है ना that you will not really have a lot of moisture in the air. तो ड्राई सीजन है. So make sure that everything is in place. You're not feeling irritated on the morning of the test. ठीक है, बट थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेना. कितना भी टेंशन हो ब्रेकफास्ट स्किप मत करना. थोड़ा सा खा लो. एक बोल फुल ऑफ समथिंग यू कैन हैव, इट्स फाइन. हैव सम नट्स और समथिंग चलेगा, बट मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग समथिंग बिफोर द टेस्ट. ऑल्सो स्लीप ऑन टाइम. मतलब यू शुड गेट एटलीस्ट 6 hours. अब मुझे पता है एंग्जाइटी क्या होती है बिफोर द टेस्ट. आई नेवर कैन स्लीप द नाइट बिफोर द टेस्ट, स्पेशली अगर मेरा अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट हो. बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए सोना. तो आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू माइट बी गोइंग थ्रू. एंड आई हैव टेकन, आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट काउंट कि कितने टेस्ट मैंने दिए हुए हैं, राइट. आई मस्ट हैव टेकन ईजिली नॉर्थ ऑफ 30 or 40 टेस्ट और मोर देन दैट, राइट. उतने टेस्ट मैंने दिए हुए, तो भी मुझे मतलब काफ़ी एंग्जाइटी होती है कि क्या होने वाला है, कैसे फेस करूंगा, वॉट क्वेश्चंस माइट कम. आई डोंट इवन हैव एनीथिंग एट स्टेक, बट वो सब लोगों के साथ होता है. आई एम प्रेटी श्योर इट्स अ नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन. सो आपके साथ भी होगा. सो मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम. इफ यू आर प्लानिंग टू वेक अप एट लेट्स से 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मेक श्योर दैट यू आर इन बेड बाय 11 or 11:30 or 12 एट मोस्ट. उससे ज़्यादा डिले मत करना, नहीं तो यू विल फील स्लीपी ड्यूरिंग द टेस्ट, विच इज़ अगेन नॉट अ ग्रेट फीलिंग. इसके लिए यू कैन गेट यूज टू दी एंटायर रूटीन बिफोर यू और इवन नाउ दैट यू हैव मे बी अराउंड 10 days लेफ्ट फॉर द टेस्ट. एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट अपने साथ होना बहुत ज़रूरी है. मे बी slot 2, slot 3 पीपल कैन स्टिल challenge themselves, थोड़ा सा tempt their fate. I would not advise them to do this as well, but एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना. सुबह सुबह प्रिंट आउट वाले शॉप्स ओपन नहीं होते, तो बहुत डिफिकल्ट होगा. इन केस अगर कुछ प्रिंट आउट मिसिंग होता है या प्रिंट आउट में कुछ क्लैरिटी ठीक से नहीं आ रही है, मेक श्योर दैट योर प्रिंट आउट इज क्लियर. अब कलर प्रिंट आउट लेना है कि ब्लैक एंड व्हाइट लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट इज ओके. आई हैव नेवर टेकन अ कलर प्रिंट आउट इन माई लाइफ फॉर एनी टेस्ट, सो डोंट वरी अबाउट इट. ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट इज परफेक्टली फाइन, बट मेक श्योर दैट वो प्रिंट आउट पहले से लेकर रख लो, राइट. अभी अगर कल परसों में इफ यू कैन टेक इट ड्यूरिंग अ वीकेंड, इफ यू आर बिजी ड्यूरिंग द वीक, प्लीज गेट इट डन एंड कीप इट इन योर बैग. यार मतलब लास्ट डे तक बैठने की जरूरत नहीं है. एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट इज समथिंग दैट अगेन आई हैव हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. मुझे एक टेस्ट याद है, नॉट कैट बट वन ऑफ दी जैट्स, एंड जैट के अंदर एक ऐसा उन लोगों ने एक साल कुछ रूल बनाया था दैट यू नीडेड टू कैरी 2 copies ऑफ द एडमिट कार्ड. और मैंने ये लोगों को बताया भी था. आई हैड टोल्ड माय स्टूडेंट्स दैट देयर आर 2 copies दैट नीडेड टू बी टेकन. मैंने बोला था कि इसको ध्यान से देख लो करके. एंड व्हाट हैपेंड, आई फॉरगॉट टू टेक 2 copies. आई हैप्पीली टुक 1 copy एंड अर्ली मॉर्निंग मुझे काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ा था टू गेट अ प्रिंटिंग शॉप. थैंकफुली मुझे एक जेरोक्स शॉप मिल गई, समवन हु वाज डूइंग देयर आयरनिंग वाला थिंग. वहाँ पे उसके पास एक स्पेयर जेरोक्स मशीन थी, एंड दैट इज बेसिकली वेयर आई गॉट माई फोटो कॉपी. सो डोंट टेम्प्ट फेट, डोंट डू ऑल दीज थिंग्स. मेक श्योर दैट एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट बहुत पहले से तुम्हारे पास है. स्टेशनरी, नाउ आई नो दैट कैट के एडमिट कार्ड के अंदर लिख के दिया हुआ है दैट पेन्स विल बी प्रोवाइडेड एंड रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड. अब रफ शीट लेके जाने की जरूरत नहीं है, बट पेन्स के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एंश्योर दैट यू आर कैरिंग अ पेंसिल और अ पेन विथ यू, बिकॉज जस्ट इन केस अगर वो अलाउ करते हैं सेंटर पे, इफ द सेंटर पीपल डोंट रियली बॉदर यू विथ योर पेंसिल, यू कैन यूज दैट पेंसिल टू डू समथिंग इन DILR. अगर वो लोग फ्रिज करते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको ये डिपॉजिट करना पड़ेगा, फेयर इनफ, जस्ट कीप इट देयर. एक 20 रुपए का पेंसिल आपका चला जाएगा तो
आपको बहुत ज़्यादा दुख तो नहीं होना चाहिए, बट इफ दे अलाउ यू टू टेक इट देन यू माइट हैव सम एज व्हेन यू आर सॉल्विंग द DILR सेक्शन. तो एक पेंसिल, एक इरेजर, एक अपना खुद का पेन लेके जाना, जस्ट इन केस देर इज सम मैल फंक्शन इन दी इक्विपमेंट और स्टेशनरी दैट दे आर प्रोवाइडिंग. रफ शीट्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट टेक ऑल दोज थिंग्स. Also, you have to have a recent photograph, so stick your recent photograph on the admit card. Admit card पे एक जगह दिया हुआ है जहाँ पे तुम्हारा फोटोग्राफ वहाँ पे चिपकाना है. अब वहाँ पे ये भी दिया होगा that your photograph should match the photo that you had uploaded. तो अगर वो uploaded फोटो अलग है और आपके पास वो printouts नहीं है, make sure that you get them printed. बहुत easy process होगा. You can just take that file, mail it to someone who is at a photocopy center or someone who can get you prints, और वो तुमको print करके दे देंगे वो photos. Again, get that done as soon as पॉसिबल. लास्ट डे तक मत वेट करना इस चीज के लिए. ऑल्सो डोंट पे अटेंशन टू आउटसाइड नॉइज. बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज होगा इन टर्म्स ऑफ क्या हो सकता है, क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरे मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, अरे लास्ट ईयर तो 5 क्वेश्चन आए थे फंक्शंस के, अरे मुझे मेरे सर ने बताया कि PNC प्रोबेबिलिटी इस बार बहुत ज़्यादा आएगा, मैंने रोमांटिसिज्म पे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं. Don't get into all those things. A lot of people you will see are standing outside the center with their parents, जो बुक लेके आएंगे, बड़े बड़े आए होंगे, बड़े बड़े, और वो राश में रिवीजन कर रहे होंगे. ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो रिवाइज करने पे याद आने वाला है? टेल मी. ऐसा कुछ भी नहीं होता. डोंट रियली गेट बॉदर्ड बाय ऑल दोस थिंग्स. डोंट स्टार्ट फीलिंग स्केयर्ड कि अरे दीस पीपल लुक सो वेल प्रिपेयर्ड, इतना प्रिपेयर करके आए हैं तो इनमें कुछ तो बात होगी, मेरा प्रिपरेशन कुछ खास लग नहीं रहा. तो डोंट स्टार्ट सेकेंड गेसिंग यूर प्रिपरेशन. मॉर्निंग में पैनिक होगा. यू विल हैव नो आइडिया व्हाट द टेस्ट इज गोइंग टू लुक लाइक. सो डोंट पे अटेंशन टू आउटसाइड नॉइज. जो बाहर के लोग हैं ना, जो ये वीडियो नहीं देखे हुए हैं, उनको आप लोगों से भी कम पता है. इतना सोच के चले जाना. राइट. आई एम टेलिंग यू अ वेरी सिंपल फैक्ट. 70 to 80% ऑफ द टेस्ट टेकर्स, इतना बड़ा नंबर होता है, उनको कैट का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट पीपल डोंट रियली नो व्हाट दे आर अपियरिंग फॉर. उनको सिर्फ पता होता है कि ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है अगर IIM जाएंगे तो, और उनको अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा जॉब होगा, अच्छा करियर बनेगा. दैट्स द ओनली थिंग. बट आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट, मे बी इवन अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट कर दूँ, राइट, 60,000 to 70,000 लोग सीरियसली प्रिपेयर करते हैं कैट के लिए. उससे ज़्यादा लोग आपको कैट के लिए सीरियसली प्रिपेयर करते हुए नहीं दिखाई देंगे. सो डोंट गेट वरीड अबाउट पीपल सेइंग नॉनसेंस आउटसाइड द सेंटर. During the test you have to keep in mind one very small thing. For especially you people, there are going to be some surprises. अब मैंने बोला कि क्या सरप्राइज होने वाला है. Every year there is some minor surprise that generally happens. अब वो क्या होता है? वर्बल के अंदर जनरली क्वेश्चन टाइप्स चेंज हो सकते हैं. DILR के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सेट चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ सेट्स चेंज हो सकते हैं, क्वांट के अंदर लेवल ऑफ डिफिकल्टी शायद चेंज हो सकती है. सो ये सारे माइनर सरप्राइजेस हैं. इससे तुम्हारा प्रिपरेशन या कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए. द गुड थिंग फॉर यू इज जो नॉर्मलाइजेशन होता है कैट के अंदर, दैट विल टेक केयर ऑफ दी सरप्राइजेस इन द फर्स्ट लॉट. तो फर्स्ट लॉट में जो भी स्कोर आता है ना, जनरली इट गेट्स स्केल्ड अप अ बिट. 2-3 मार्क्स है ना ऊपर स्केल अप हो जाता है वो. तो यू ऑलरेडी हैव एन एडवांटेज ऑफ 8, 9, 10 मार्क्स इफ यू आर स्कोरिंग हाई. तो उतना एडवांटेज तुम्हारे पास होगा. ठीक है. सो मेक श्योर दैट सरप्राइजेस अगर आते भी हैं तो डील विद देम वेरी नाइसली, वेरी कामली. बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगेन एज आई सेड, 70%, 80% ऑफ द पीपल हैव नो आइडिया व्हाट दे आर गोइंग टू डू ऑन द डे ऑफ द कैट. उनके लिए तो सरप्राइज मतलब वो देख के डर जाएंगे, मतलब हिल जाएंगे वो देख के. राइट. पीपल विल स्टार्ट क्राइंग. दैट इज हाउ बैड इट गेट्स. Right? You are a prepared candidate. You should behave in a much more mature way compared to an unprepared aspirant. So make sure that surprises के साथ एकदम आराम से डील करो, प्यार से डील करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मेजर सरप्राइजेस या थिंग्स दैट माइट गो रॉन्ग, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. सो क्या क्या चीज़ें हैं ना जो गड़बड़ हो सकती हैं. मतलब इन्विजिलेटर ने आके बोल दिया साइन करो, थंब इंप्रेशन लगा लो, एंड यू आर इन द मिडल ऑफ योर टेस्ट, योर नेबर स्टार्ट्स फिजेटिंग, तो क्या करना चाहिए. रफ शीट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए. सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ तो क्या करना चाहिए. व्हाट इफ यू आर फीलिंग कोल्ड, व्हाट इफ यू आर फीलिंग वार्म. तो ये सारी चीज़ें ना आई विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो. Now, if you are a repeater and you have made it till this point in time, इसके आगे की चीज़ more or less आप लोगों को पता है. तो रिपीटर्स नो दी ड्रिल, what needs to be done. जो भी लास्ट ईयर हुआ था एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला है. More or less 90, 95, 98% of your experience is going to be exactly the same. I hope with a better score. But जो एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है ना, इंटरफेस या जो टेस्टिंग सिस्टम होगा, लैब होगा, जो प्रोसीजर होगा, वो सारा का सारा एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था. नाउ ड्यूरिंग द टेस्ट इफ देयर आर एनी कंसर्न्स, कुछ भी अगर प्रॉब्लम दे रहा है चीज़, राइट, तो हाथ ऊपर करके इन्विजिलेटर को बोल दो कि सर, मैम, आप प्लीज़ ये एड्रेस कर दीजिए, मुझे यहाँ पे रेजोल्यूशन चाहिए. इफ़ यू नीड वाटर यू कैन जस्ट टेल देम दैट आई नीड सम वाटर, कैन यू हेल्प मी विद इट. राइट. अगर कुछ रफ शीट में इशू है, जस्ट लेट देम नो. अगर कुछ सिस्टम में इशू है, लेट देम नो.
बिफोर द टेस्ट एक बार सिस्टम पूरी तरह से देख लेना, कहीं पे भी कुछ वायर वायर में पैर नहीं अटकने वाला, वैसे वाला एक पोस्चर मेंटेन कर लेना थ्रू आउट द टेस्ट. यू कांट अफोर्ड टू बी फिजिटिंग थ्रू आउट द टेस्ट. वो करोगे तो देयर इज अ गुड चांस दैट यू माइट गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड कुछ तुम्हारा सिस्टम बंद हो जाए, कुछ है ऐसा हो सकता है. सो डोंट डू ऑल दोज थिंग्स, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस बिफोर यू स्टार्ट द टेस्ट. सब चीज़ चेक कर लेना, माउस ठीक से चल रहा है कि नहीं, एंड एवरीथिंग, मतलब गेट गो फॉर अ वॉशरूम ब्रेक, हैव वाटर, सब कर लेना बिफोर यू सिट ऑन योर सिस्टम. ठीक है. नाउ रफ शीट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं. इफ यू लुक एट दी डायमेंशन A5 आई थिंक साइज होता है, तो A4 शीट को अगर फोल्ड करोगे ना तो जो बनेगा वैसे वाले शीट्स होते हैं. एंड देयर आर 32 साइड्स अवेलेबल, तो काफ़ी ज़्यादा रफ शीट्स होते हैं. उतने रफ शीट्स अगर भर दोगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे. सो बी रेस्ट अश्योर्ड दैट उतना रफ शीट बहुत ज़्यादा होता है. हर एक पेज पे एक एक DI सेट भी करोगे तो भी शीट्स खत्म नहीं होने वाले हैं. क्वांट आराम से हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है रफ शीट्स के साथ में. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट, इज अ नाइस बुकलेट अवेलेबल, सो डोंट वरी अबाउट द रफ शीट का सिचुएशन. जनरली कुछ प्रॉब्लम नहीं होता एंड एवरीथिंग इज फाइन. दिस ईयर इफ दे डिसाइड टू चेंज समथिंग, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क फॉर एक्स्ट्रा रफ शीट्स जस्ट इन केस यू नीड देम, बट मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें ठीक है. ठीक है. अब ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स. अब इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, कर लो. द क्वेश्चंस आर रेयरली रॉन्ग. अब इसका एक इंटरप्रिटेशन है, द क्वेश्चंस आर रेयरली रॉन्ग, मतलब कभी कभी क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी शायद हुए थे, राइट. तो हो सकते हैं क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ये भी हो सकता है. सो ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल. सो नो दैट सम क्वेश्चंस माइट बी रॉन्ग. इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस गलत हैं. एक स्लॉट के अंदर मे बी 1 or 2 क्वेश्चंस विल बी रॉन्ग, उससे ज्यादा क्वेश्चंस गलत नहीं होते जनरली, बिकॉज द टेस्ट आर क्यूरेटेड. चांसेस आर वेरी हाई दैट पूरा का पूरा टेस्ट एकदम सीमलेस होगा, एररलेस होगा. तो इतना ज्यादा मत सोचना कि हर एक क्वेश्चन में यू आर गेटिंग समथिंग, बट नहीं क्वेश्चन गलत है, नहीं ये क्वेश्चन गलत है, नहीं वो क्वेश्चन गलत है, DI का पूरा सेट ही गलत है. ऐसा नहीं होता. पीपल कम एंड डिस्कस दीज क्वेश्चंस आफ्टर द फर्स्ट स्लॉट, और उनको सरप्राइजिंग लगता है जब कोई उनको बोलता है कि नहीं इसको ऐसा सॉल्व कर सकते थे. तो क्वेश्चंस गलत नहीं होते जनरली. सो गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द पेपर सेटर, क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे मोस्टली. एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है, लेट गो ऑफ दैट क्वेश्चन, डू समथिंग एल्स, एंड मे बी आफ्टर सम टाइम कम बैक टू दैट क्वेश्चन विद अ फ्रेश माइंड. तो वहां पे मे बी यू विल सी समथिंग दैट यू आर मिसिंग अर्लियर. ऑल्सो यूज योर बेस्ट जजमेंट. किसी को नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या अज्यूम करना चाहिए, किसी को नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या सोच के वो क्वेश्चन बनाया है. इफ द थॉट ऑफ द पेपर सेटर मैचेस योर थॉट प्रोसेस, लैंग्वेज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपने को नहीं पता, तो इन्विजिलेटर से पूछना या किसी से पूछना कि ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई नीड मोर क्लैरिटी. ऐसा कुछ नहीं होगा. यू विल हैव टू यूज योर बेस्ट जजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू. द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से शुरू किया था वहीं पे आई एम कमिंग बैक. यू शुड नॉट फील स्लीपी और टायर्ड व्हेन यू आर टेकिंग द टेस्ट. ठीक है. अगर ये कुछ हो रहा है ना तो यू आर इन बिग ट्रबल एनीवे. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट फीलिंग स्लीपी, यू आर नॉट फीलिंग टायर्ड, यू आर एब्सोल्युटली इन द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड व्हेन यू आर टेकिंग द टेस्ट. अगर थोड़ा नींद आ रहा है या थोड़ा टायर्डनेस लग रहा है ना, मे बी यू कैन क्लोज योर आइज फॉर अ बिट, थोड़ा पानी अप्लाई कर लेना, हैव अ सिप ऑफ वाटर, राइट. Do something that will make you slightly active, right. Go for questions that you are able to solve. क्वांट में स्पेसिफिकली ये करना है दैट यू विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन दैट यू नो दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ ऑफ बीइंग एबल टू सॉल्व, वो अपने को करना है. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स इफ यू आर फीलिंग स्लीपी और टायर्ड. नहीं तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होगा, स्पेशली इन द थर्ड सेक्शन, कि वहाँ पे मतलब इफ यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, स्लीपी, फटीग, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू लीड टू अ डिजास्टर. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख लेना. Do have a look at the other video that I am going to release, जिसके अंदर I would have spoken about the various things that can go wrong on the day of the test. So make sure that you are mentally prepared to deal with all of those things, and I think you should be fine. So wish you all the best for all those of you who are preparing for the CAT and are planning to take it in the first slot. Do stay subscribed to the channel. Make sure that your notifications are on so that you get involved in all the activities that we are going to conduct in the lead up to the CAT. Wish you all the best again, and I'll see you again in the next video.